शशांक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की सीरीज। इंटरनेशनल रिलेशन से निकल गया, आदत हो गई उसी में। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की सीरीज हम शुरू करेंगे। और हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज में जो 5th वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आप जरूर देखें। फॉरेन पॉलिसी के जो सेकंड पार्ट है उसके, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो सीरीज हमारी, सो इन सीरीज में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इट इज द सेकंड वीडियो। द फर्स्ट वीडियो इज अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। दैट वाज आल्सो एन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सीन दैट यू शुड हैव टू सी। तो आपको देखना चाहिए, वो बहुत अच्छा वीडियो है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है, क्यों लगता है और किन कंपनीज पे लगा हुआ है, वो लिस्ट क्यों हुआ, इस सब के बारे में जानकारी। सो नाउ इन द सेकंड वीडियो for interesting fact series we should see about an organization. Now you will be wondering why I have written here army, Dimasa National Liberation Army. You should get a feeling that this is a branch of Indian Army, Navy and Air Force, but this is not a branch of Indian Navy, Air Force or of Indian defense system. It is an extremist organization which wants to have a separate nation from India, to get a separate nation from India. So what is the Dimasa National Liberation Army, why it is formed, what it wants, will it get its ambition or not? So we will see all the things and we will answer all the questions in this video. Now we will see about that some recent news. So in the newspapers or in the news channels of 28 August 2021 you will see that in Assam and terror activities or some goons or an organization killed 5 civilians of Assam and set a truck on fire place. So it is believed that this group Dimasa National Liberation Army has done that. मतलब इसी ग्रुप ने वो किया है, 5 लोगों को मारा है और एक ट्रक में आग लगाई है। So Dimasa National Liberation Army. So why this group has done that? क्यों किया है इन्होंने? To protest against government of India, central government of India. और क्या इसमें भी कोई पॉलिटिक्स है? क्या बीजेपी, कांग्रेस, इसमें कोई राजनीति का खेल नहीं है। ये जो डिमासा पीपुल हैं, they are fully indigenous. Now we will to understand their motive and vision, we will have to go to history, not in deep history, but we have to go some overview of history, so that you can understand why they want a separate nation and why they have done that in Assam recently. So Dimasa is what is Dimasa? Dimasa is the community or name of a community living in Assam and Nagaland. They are indigenous and ethno-linguistic. Dimasa is indigenous and ethno-linguistic community. Ethno-linguistic means what? If a question arises, if some people does not know the definition of ethno-linguistic and doesn't know the what is the meaning of ethno-linguistic group. So Dimasa is an indigenous and ethno-linguistic group. Ethno-linguistic means those community which have a common language as well as common ethnicity. Means that suppose take an example of Tamil Nadu. Tamil Nadu, the common language is Tamil. Now and all types of people living there, whether Hindu, Muslim and of other religions. So if an Hindu speaks Tamil, you can say that the language of that Hindu is Tamil, and if a Muslim also speaks Tamil in Tamil Nadu, you can say that the Muslim that speaks Tamil is also Tamil. So they have common language, but they don't have common ethnicity. They are completely different in ethnicity. One is Hindu and one is Muslim. But in the ethno-linguistic community, the ethnicity is also same and the language is also the same. Means that suppose if अगर तमिलनाडु ethno-linguistic community वाला ग्रुप रहता तमिल लोग, तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते और सब तमिल बोलते, तो तब हम बोल सकते थे कि वो ethno-linguistic community है। या फिर वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स रहते और तमिल बोलते से, तो they have same ethnicity, same language, so they are ethno-linguistic group. So ethno-linguistic group means those group which have
same language as well as same ethnicity. This is what called several other factors are there in linguistic like demography, geographical factors there. So we should not get funded that, because this video is about Dimasa National Liberation Army and their launch and their establishment, not about definitions of ethno-linguistic community. So if you want to see that, then you can go to Google, on Wikipedia you will see the detailed definition of ethno-linguistic group. So in that Dimasa, so they are indigenous and ethno-linguistic group. Now, where these Dimasas people live? Now the question will arise in your mind that where these Dimasas people live? Wait a minute. So these Dimasas people live in the regions of Assam and Nagaland. Which regions? So in Assam, there are some autonomous district councils which were provided by the 6th schedule of our Indian Constitution, like Kachar Hills Autonomous District Council. It is also in home of Dimasas. Karbi Anglong Autonomous District Council, the district of Kachar in Assam, the district of Nagaon in Assam, and in the regions of Raji in Nagaland. So along the borders of Assam and Nagaland, these Dimasas people dominate, and they set an organization called Dimasa National Liberation Army back to 1990s. The 1990s मतलब 1990s में ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बट डिमासास पीपल ने उस समय भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज की थी, इंसर्जेंसी की थी। उस समय नेगोशिएशन और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के द्वारा इन डिमासास को दबा दिया गया था और उनका जो ऑपरेशंस था, उनका जो स्ट्रगल था, उसको एंड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। बैक देन इंडियन, उसके बाद से 1990 से पूरे लगभग 20 साल तक, यानी 2019 तक, लगभग 19 साल, नहीं 19 साल नहीं, 29 साल होगा, सॉरी, इन 29 इयर्स तक वहां पे पीस था। लेकिन फिर अप्रैल 2019 में डिमासास ने एक अपना नया लिबरेशन आर्मी का गठन किया, लॉन्च किया अप्रैल 2019 में। So this organization has been launched by Dimasas in April 2019 and they started a fresh struggle, armed struggle again. And this back in 2019 also the Indian government managed to suppress their movement, but recently they have again gained strength, and their main reason of strength is this group, Nationalist Socialist Council of Nagaland Istak Movie, NSCNIM. So we will come to this group also. So firstly these groups were launched on April 2019. Now we will see that why these groups were launched. So Dimasas want their regions that two district councils, Kachar Hills Autonomous District Councils and Karbi Anglong Autonomous District Council, and the regions of Kachar District, Nagaon District of Assam and Nagaland. So they want to free these states, free these regions from the power of Indian government, and they want to revamp the national struggle from 1990s and want a sovereign, now mark my words, sovereign independent Dimasa nation. They want a sovereign and independent Dimasa nations separate from India. So that was their hope, उनका ये प्रण कि वो लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट हर बार उन्हें नेगोशिएशन से अगर बात नहीं बनी तो बल द्वारा, सिक्योरिटी ऑपरेशंस द्वारा दबा देती, पर इस बार उन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब 1990 से लेकर अब तक जितने बार भी डिमासास का स्ट्रगल रिवैम्प हुआ, उनमें से सबसे ज्यादा तेजी से, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये स्ट्रगल है, क्योंकि इनको इस ग्रुप का नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जो NSCNIM है, उनका स्ट्रेंथ प्राप्त। And what is this Nationalist Socialist Council of Nagaland Istak Movie? It is also an extremist group. ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और ये एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज में इंडल्ज है। एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज और भी जो वेरियस एक्टिविटीज हैं अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ नागालैंड एंड असम, उनके द्वारा इनका पैसा आता था और ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी इंसर्जेंसी कहलाते थे नॉर्थ ईस्ट में।
सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पहले इन पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस किया, पर नॉर्थ ईस्ट के जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वहाँ के जो एथनिक लोग हैं, वहाँ पे डर ये भी रहता है कि अगर सिक्योरिटी ऑपरेशंस करें तो हो सकता है चाइना उन्हें अपना इन्फ्लुएंस मिले इंडिया का इमेज खराब करके। तो इंडिया ने फिर नेगोशिएशंस का भी रास्ता अपनाया। नेगोशिएशंस करने के लिए बहुत सारे ग्रुप से बात की गई, बहुत सारे ग्रुप्स ने कॉम्प्रोमाइज भी किया। इस ग्रुप से भी बात की गई, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एसोसिएशन। इस ग्रुप के सामने शर्त रखी गई कि आपकी जो थोड़ी मांगे हैं, सेपरेट नेशन की मांग तो कभी पूरी नहीं होगी, और जो थोड़े मोटे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स देने की मांगे हैं, स्वायत्ता जो अपना शासन देने की मांगे हैं थोड़ी सी, वो पूरी होगी। तो उसके बाद जो 6 शेड्यूल में तो वो दिया ही गया था, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से है वो दिया गया था, क्योंकि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में उनका अपना अलग शासन रहता है। वो जो सामान्य जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल या फिर महाराष्ट्र में जो फेडरल सिस्टम वहां पे भी है, पर कुछ जो पंचायती राज जो सिस्टम्स है वो वहां पे नहीं चल पाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाता है। तो दिया ही गया, लेकिन वो और कुछ ज्यादा की मांग कर रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इन्होंने भी किया, ग्रुप्स ने भी किया। तो पर ये जो ग्रुप था वो, इसको कहा गया कि आप एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं रहेंगे, तभी बात। तो ये इन्होंने हाँ कह दिया, पर आदत तो नहीं गई। तो इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए हाँ किया। जैसे पाकिस्तान ने जब एफएटीएफ की बैठक हुई, तो उसमें जो उनको 38 पॉइंट की 37 टू 38 पॉइंट अप्रॉक्स जो टेरर के खिलाफ एक्शन लेने का जो एफएटीएफ द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा टास्क दिया गया था, उसमें से उन्होंने सबसे पहले तो नॉक पे एक्शन लिया था, वो भी झूठा दिखाने के लिए। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वो ब्लैकलिस्ट होने के हैं, तो उन्होंने सब पर एक्शन लिया थोड़ा थोड़ा। हाफिज सईद, मसूद अजहर को, इस सबको जेल में डाला, पर थोड़ा थोड़ा एक्शन लिया, उनकी सोर्स को बंद किया, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए था। उसी तरह इन्होंने भी दिखावे के लिए किया। अब क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट से, चूंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट से टॉक्स में इंडल्ज थे, तो ये डायरेक्टली एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने अपने लिए और अपने इंसर्जेंसी बनाने के लिए प्रॉक्सी इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करवाई, जिसका नाम था डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। यही थी डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी की कहानी। और अब ये एक्सटॉर्शन करती है, और इनसे पूछने पे ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता। इन्हीं का पावर प्राप्त है। और रिसेंट ईयर्स में डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी को बहुत स्ट्रेंथ मिला है, ड्यू टू द बैकिंग ऑफ नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मूवी, और उनके एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज से जो उन्हें फंड मिलता है उससे दे प्रोक्योर वेपन्स भी उन्होंने खरीदे हैं और किए हैं, और एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज में वो इंडल्ज रहते हैं और कोई उन्हें कुछ कह नहीं पाता है। तो ये जो डिमासा लोग हैं, इनकी मांग पूरी है कि अब ये चाहते हैं कि इन्हें सेपरेट डिमासा नेशन मिले, और नहीं मिलने पर ये इंडिया के अंदर असम पार्ट ऑफ इंडिया है, तो उसमें वो इंसर्जेंसी फैलाते हैं। जैसे कि उन्होंने 5 सिविलियंस को मार दिया ट्रक पे। सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेट है और इंडियन डिफेंस को भी, पर मेन थ्रेट वो बोलते हैं कि ये एक कठपुतली है। मेन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मूविया का ही काम है। और भी ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि नागालैंड के जो पीस टॉक्स थे वो शुरू किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, पर बीच में वो रुक गए। किस कारण से रुके ये सिर्फ गवर्नमेंट बता सकती है। हो सकता है इनकी इंसर्जेंसी से ये बाज नहीं आ रहे, इससे रुके, या फिर गवर्नमेंट की लापरवाही से रुके, पर स्टॉल्ड हुए नागा पीस टॉक्स। उसको शुरू करने के लिए हो सकता है गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे हैं, और यही कारण निकल के आ रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के सोर्सेज द्वारा। वो गुप्त रखते हैं अपने सोर्सेस, तो उनका नाम नहीं पता है कि कौन किसने कहा है, पर कुछ सोर्सेस द्वारा ये कहा गया है कि हाई चांस है कि ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो नागा पीस टॉक्स को वापस शुरू करने के लिए। तो वेदर इट इज टू बी सीन, अभी देखना है कि क्या गवर्नमेंट इनके प्रेशर में वो पीस टॉक्स शुरू करती है, क्या इन पर कोई सिक्योरिटी एक्शन लिया जाएगा, क्या इन पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, या फिर नेगोशिएशन से किया जाएगा। पर कुछ तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर कुछ नहीं किया तो ये लोग अपने आप को स्ट्रेंथफुल मानेंगे, और इनकी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है कि वो वेरियस टेरर एक्टिविटीज और एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं। और मेजर जो टेरर एक्टिविटीज ब्लास्ट हुए हैं असम, नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, उनमें सबसे पहले हमेशा इसी ग्रुप का नाम आता है, डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना था मुझे आपको। वेट अ मिनट,
इन लोगों ने जो वहाँ पे जो एक्टिविटीज की है उस पर वहाँ पे गवर्नमेंट कड़े नजर बनाए हुए है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी कड़े नजर बनाए हुए हैं। और वेदर इट इज रिमेन टू बी सीन दैट, जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट अब आगे क्या करती है, पर गवर्नमेंट में प्रेशर तो है कि नॉर्थ ईस्ट में जो पीस की तरफ बढ़ रहा था उनमें फिर सब एक इंसर्जेंसी का खतरा है, और ये इंडिया के सिक्योरिटी रीजंस, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो नजदीकी है चाइना से बहुत नजदीक है, तो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, और चाइना और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं किसी से छुपा नहीं है, तो ये एक मेजर, नॉट अ माइनर, लोग इसे माइनर कह रहे हैं पर एक मेजर थ्रेट है। और आने वाले समय में गवर्नमेंट इससे कैसे टैकल करती है, ये गवर्नमेंट इट रिमेन्स टू बी सीन। अगर गवर्नमेंट ने इसे सक्सेसफुली टैकल किया तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और अगर इसे अनसक्सेसफुली टैकल किया गया तो ये गवर्नमेंट का फेलियर तो होगा ही होगा, साथ में एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के लिए हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जो हमेशा से इंसर्जेंसी के ही खौफ में रहा है। बाकी डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बारे में अगर हम और जानकारी दें तो इनके चेयरमैन है और एक होम सेक्रेटरी भी है। जो होम सेक्रेटरी है उनका नाम है खरमिंडाओ डिमासा। उनके नाम ऐसे ही होते हैं, मतलब थोड़ा से वो पटांग लगेंगे लेकिन नाम में क्या है, लेकिन वो के नाम ऐसे ही होते हैं। और इन्होंने गवर्नमेंट इन एक्साइल किया है, गवर्नमेंट इन एक्साइल। और जो चेयरमैन है उनका नाम है नाई सोडाओ डिमासा। तो दे बोथ आर फ्रॉम डिमासा ग्रुप एज देयर टाइटल सजेस्ट, और दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ गवर्नमेंट, अ पैरेलल गवर्नमेंट along with government of India और government of Assam. It is named as government in exile. Exile means होता है वनवास, या फिर जो जिनको भेज दिया जाता है कहीं पर, जैसे कि एक्साइल में भेज दिया जाता है, जैसे कि इपिक्स में रामायण महाभारत में एक्साइल शब्द का नाम आता है। तो ये जो है तो उसमें, और उनका नाम है डिमासास पीपुल सुप्रीम काउंसिल, उस गवर्नमेंट का नाम इन्होंने रखा है। तो दैट गवर्नमेंट डजंट हैव पावर, वो अपने ही में पावर रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमें भी लोगों का सपोर्ट प्राप्त है। वो एक जैसे कि कैसे इंडिया के नेशनल स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंस में भी एक पैरेलल इंडिया में जो अंग्रेजी हुकूमत थी, इंग्लैंड की जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसके पैरेलल में एक इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, और उसको 3-4 देशों ने मान्यता भी दी, और इसको किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। ये तो एक छोटा सा ग्रुप है जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं है, हमने ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। तो वेदर इट इज एट लास्ट आई विल से दैट वेदर, इसको मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी का एक मेजर पार्ट होगा, और इसी गवर्नमेंट को टैकल सक्सेसफुली करना ही होगा। अगर नहीं कर पाए तो ये मेजर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो आप जरूर बताएंगे, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितने भी पहले के वीडियोस आपने इस चैनल पे नहीं देखे हैं उसको भी देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ऐसे ही हम रोज ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग मुझे भी लगती हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन और ये दोनों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो इसे हम बनाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपने पहले कभी इस ग्रुप का नाम सुना था, और नहीं सुना था तो ये सुन के कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।